Hello everyone. So in this video we will discuss about the Marek's disease. So without any further ado, let's get started. So simply, the Marek's disease is a lymphoproliferative disease of the chickens caused by the herpes virus. It is characterized by the mononuclear infiltration of the peripheral nervous system to a lesser degree other tissues and visceral organs. The Marek disease virus is a cell-associated herpes virus with the lymphotropic properties. सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द मैरेक्स डिजीज. सो सिंपली द मैरेक्स डिजीज इज अ लिम्फोप्लोरिफरेटिव डिजीज ऑफ द चिकन्स दैट इज कॉज्ड बाय द हर्पीस वायरस. अभी जो मैरेक्स डिजीज है, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है हर्पीस वायरस, जो कि चिकन्स को टारगेट करता है और वहां पे लिम्फो प्लोरिफरेटिव कंडीशन को डेवलप कर देता है. इसका मतलब क्या हुआ, जो भी चिकन्स मैरेक्स डिजीज से सफर करेंगे, वहां पे क्या होगा, लिम्फोसाइट्स का काउंट एक्सेसिव अमाउंट में एबनॉर्मली बढ़ जाएगा. ठीक है. So after that, it is characterized by the mononuclear infiltration of the PNS or the peripheral nervous system and to a lesser degree other tissues and the visceral organs. Simply, जो भी चिकन्स मैरेक्स डिजीज से सफर करेंगे, उनके पीएनएस में क्या होगा, सबसे ज्यादा मोनोन्यूक्लियर सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन होगा, देन टू द लेसर डिग्री इन टिश्यूज एंड अदर विसरल ऑर्गन्स. ठीक है. After that, the Marek's disease virus is a cell-associated herpes virus with the lymphotropic properties. Simply, ये जो Marek's disease का पॉजिटिव एजेंट है, that is Marek's disease virus, ये एक सेल एसोसिएटेड herpes वायरस है जिसके पास lymphotropic properties होती हैं. मतलब कि जो Marek's disease वायरस है, वो मेनली lymphocytes को टारगेट करता है. ठीक है. After that, the Marek's disease exists in the poultry producing countries throughout the world, including the India. The disease was first described by the Hungarian veterinarian Jos Marek in 1907, after whom it is named as Marek's disease. The neural involvement leading to the paralysis was the most visible symptom, so-called the polyneuronitis, foul paralysis, range paralysis, and neurolymphomatosis. So now moving on, the Marek's disease exists in the poultry producing country including the India. Simply ये जो Marek's disease है, उन countries में पाई जाती है जहाँ पे पोल्ट्री का प्रोडक्शन होता है. ठीक है. After that, the disease was first described by the Hungarian veterinarian named as Joseph Marek in 1907, after whom it is named as Marek's disease. Simply, ये जो मैरेक्स डिजीज है, सबसे पहले एक हंगेरियन वेटेरियन थे जिनका नाम था जोसेफ मैरेक. उन्होंने 1907 में डिस्क्राइब करी एंड उन्हीं के ऑनर में हमने इस डिजीज का नाम रख दिया मैरेक्स डिजीज. ठीक है. After that, the neural involvement leading to the paralysis was the most visible symptom, so-called the polyneuronitis, foul paralysis, range paralysis, and neurolymphomatosis. सिंपली ये जो मैरेक्स डिजीज है, जिसका पॉजिटिव एजेंट है मैरेक्स डिजीज वायरस और यू कैन से हर्पीस वायरस, ये क्या करता है, चिकन्स को इन्फेक्ट करता है. और अगर इसका इन्फेक्शन चिकन्स के नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है, तो उसकी वजह से चिकन्स में पैरालिसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, विच इज द मोस्ट विजिबल सिम्टम. और इसी की वजह से हम मैरेक्स डिजीज को पॉलीन्यूरोनाइटिस, फाउल पैरालिसिस, रेंज पैरालिसिस और न्यूरोलिम्फोमेटोसिस के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. Moving on, we will discuss about the etiology of the Marek's disease. So simply, the Marek disease virus is an alpha herpes virus which is enveloped DNA virus having the linear double-stranded molecule of the DNA. The MDV and related herpes virus have been classified into the three serotypes. The serotype 1 comprising of the oncogenic strains of the MDV. The serotype 2 is a group of the naturally apathogenic strains of the MDV. The serotype 3 is the apathogenic and antigenically related with the herpes virus of the turkeys and known as HTV. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the etiology or the causative agent of the Marek's disease. So simply, the Marek's disease is caused by the Marek's disease virus, which is an alpha herpes virus enveloped DNA virus having the linear double-stranded molecule.
अभी जो मैरेक्स डिजीज है इसका पॉजिटिव एजेंट होता है मैरेक्स डिजीज वायरस, जो कि एक अल्फा हर्पीस वायरस है जिसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इन्वलप्ड होता है एंड इट इज लीनियर इन स्ट्रक्चर, ठीक है। आफ्टर दैट द एमडीवी एंड द रिलेटेड हर्पीस वायरस हैव बीन क्लासिफाइड इनटू द 3 सीरोटाइप्स। अभी जो मैरेक्स डिजीज वायरस है और रिलेटेड हर्पीस वायरस, हमने इनको 3 सीरोटाइप्स में डिवाइड करा। The first serotype comprises of the oncogenic strains of the MDV। जो फर्स्ट सीरोटाइप है ऑफ द मैरेक्स डिजीज वायरस, उसके पास ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर कोई भी चिकन इन्फेक्ट होती है विद द एमडीवी सीरोटाइप 1, तो वहां पे क्या होगा, ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टीज की वजह से उसमें ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। Coming to the next serotype, that is serotype 2, and it is group of a naturally apathogenic strains of the Marek's disease virus। Simply, अगर कोई भी चिकन मैरेक्स डिजीज वायरस के सेकेंड सीरोटाइप से इन्फेक्ट होती है, तो वहां पे कोई भी पैथोजेनिक और क्लिनिकल कंडीशन डेवलप नहीं होगी, क्योंकि जो सीरोटाइप 2 होता है इट इज नॉन पैथोजेनिक, ठीक है। आफ्टर दैट the serotype 3 is the apathogenic and antigenically related to the herpes virus of the turkey and hence known as HTV। देखो, ये जो मैरेक्स डिजीज वायरस और रिलेटेड हर्पीस वायरस का थर्ड सीरोटाइप होता है, वो भी एपैथोजेनिक होता है, इसके पास कोई पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज नहीं होती। साथ ही साथ ये रिलेट करता है उन हर्पीस वायरस के साथ जो कि टर्कीज को इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, HTV, दैट इज हर्पीस टर्की वायरस, ठीक है। Moving on, in the etiology of the Marek's disease, the serotype 1 strains have been subdivided into the 3 pathotypes: mildly virulent, that is MMDV, virulent, that is MDV, and very virulent, that is VVMDV। The virus infectivity in the in vivo and in vitro is strictly cell associated except in the feather follicle epithelium where cell-free virus is produced। देखो भाई, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द ईटियोलॉजी ऑफ द मैरेक्स डिजीज, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो मैरेक्स डिजीज है इसका कॉजेटिव एजेंट होता है मैरेक्स डिजीज वायरस, जो कि एक अल्फा हर्पीस वायरस है, जो कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर, ठीक है। और इस एमडीवी वायरस के पास 3 सीरोटाइप्स होते हैं। नाउ द फर्स्ट सीरोटाइप स्ट्रेन हैव बीन सब डिवाइडेड इनटू द 3 पैथोटाइप। अब ये जो 3 सीरोटाइप थे, सीरोटाइप 1, सीरोटाइप 2, सीरोटाइप 3 ऑफ द मैरेक्स डिजीज वायरस, इसका जो फर्स्ट सीरोटाइप है इसको फिर से 3 पैथोटाइप्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट वन इज माइल्डली वायरुलेंट, सेकंड वन इज वायरुलेंट एंड थर्ड वन इज वेरी वायरुलेंट। सिंपली, अगर कोई भी चिकन सीरोटाइप 1 के फर्स्ट पैथोटाइप दैट इज माइल्डली वायरुलेंट से इन्फेक्टेड होती है, तो वहां पे माइल्ड इन्फेक्शन होगा। MDV दैट इज वायरुलेंट पैथोटाइप ऑफ सीरोटाइप 1 से इन्फेक्ट होती है, तो वहां पे एक मॉडरेट अमाउंट का क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप होगी इन्फेक्टेड चिकन्स में। और अगर कोई भी चिकन MDV वायरस के सीरोटाइप 1 के थर्ड पैथोटाइप दैट इज वेरी वायरुलेंट VVMDV के साथ इन्फेक्ट होती है, तो वहां पे जो पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप होगी इट विल बी वेरी वेरी सीवियर, ठीक है। देखो भाई, simply the virus infectivity in vivo and in vitro condition is strictly cell associated except in the feather follicular epithelium where the cell free virus is produced। देखो, हम सभी जानते हैं कि जो वायरस है वो डिपेंड करता है सेल के ऊपर फॉर इट्स डिवीजन एंड फॉर इट्स सर्वाइवल, इजंट इट। अभी जो मैरेक्स डिजीज वायरस है, अगर आप इसकी इन विट्रो और इन विवो स्टडी करते हो लेबोरेटरी में या नेचुरल प्रोसेस में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो मैरेक्स डिजीज वायरस है ये भी सेल के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है फॉर इट्स सर्वाइवल एंड इट्स डिफीजन। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि सिंपली मैरेक्स डिजीज वायरस फेदर फॉलिकुलर एपिथेलियम में सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और यहाँ पे आपको सेल फ्री वायरस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। So now moving on, we will discuss about the host of the Marek's disease virus and it is chickens, quails and the turkeys। देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द होस्ट ऑफ द मैरेक्स डिजीज वायरस। सिंपली कि जो मैरेक्स डिजीज वायरस है वो किस किस एनिमल, किस किस बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है। जो मैरेक्स डिजीज वायरस है उसके लिए चिकन्स, क्वेल्स और टर्कीज जो है होस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। So that's all for this video. We will meet very soon in the next one.